सीधे आपको लिए चलते हैं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेजेंट गवर्नमेंट, द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन is destroying the very foundations of our republic. So what do we need? We need an open dialogue. We need conversations. We need to understand each other's point of view. I don't want to talk about Punjab, but a border state where this is happening to the Congress party means what? It's an advantage to the ISI in Pakistan. We know the history of Punjab and the rise of extremism there. We know how forces across the border exploit the situation to create an atmosphere of uncertainty. It is these forces that are the biggest threat to our country. The Congress party should make sure that they remain united. If somebody has an issue, that issue has to be discussed. Consultations must take place from the senior-most members of the party. The organizational structure must be strengthened. That is to be done if the organization is in place, if there is a president, if there is an elected CWC, if there is a central election committee, if the structure is strengthened bottoms up. I want to end with the words of Mahatma Gandhi, and this is very important. This is what he said. He said, "I have repeatedly observed that no school of thought can claim a monopoly of right judgment. We are all liable to err and are often obliged to revise our judgments. In a vast country like this, there must be room for all schools of thought. And the least, therefore, that we owe to ourselves as to others is to try to understand the opponent's viewpoint. And if we cannot accept it, respect it as fully as we expect him to respect ours. It is one of the indispensable tests of healthy public life." That's what the Mahatma said. So listen to our point of view. If you don't accept it, fine, but at least listen. We respect your point of view, but have the space to respect ours. Allow us that dialogue. There are no monopolies. No monopoly should be created in the power structures of any country, nor in the power structures of any party. And I'll again quote Mahatma Gandhi when he said, "Democracy cannot be worked by 20 men sitting at the center. It has to be worked from below by the people of every village." Please remember the words of the Mahatma and do what is good for the party. Thank you. तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल एक बार फिर निशाना साधते हुए, अध्यक्ष नहीं है, एकजुट होकर सरकार से लड़ने का वक्त है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, सब लोग मिलकर सोचे पार्टी कैसे मजबूत हो। महात्मा गांधी के शब्दों का भी जिक्र उन्होंने किया। जो एक क्राइसिस हुआ है पॉलिटिकल, वो वजह है। अभी क्यों, फिलहाल क्यों? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। आज भी हम यही बयान दे रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, मजबूत कीजिए, बुनियादी तौर से मजबूत कीजिए, लोगों की बात सुनिए, ऑर्गेनाइजेशनल को स्ट्रेंथन कीजिए। हमने जो घटनाएं पंजाब में हो रही थी, हमने कुछ कहा?
आज तक नहीं कहा। हमारे में से किसी ने नहीं कोई टिप्पणी नहीं दी। हमारी वजह से तो नहीं हो रही। सर आपने एक बात कही, पंजाब में ये स्थिति है, आपको क्या लगता है जो पंजाब में अभी स्थिति बनी हुई है, नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी में लाना, अध्यक्ष बनाना, एक पुराने मुख्यमंत्री को इस्तीफा दिलवा देना और उस मुख्यमंत्री का ये कहना कि जिस तरह के व्यवहार मेरे साथ हो रहा है वो उचित नहीं है, फिर ये गलती किसकी है? सबसे पहले तो इस तथाकथित जो G23 है, जब भी ये मौलिक सवाल उठाता है तो उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता एक परसेप्शन बनाते हैं कि आप लोग गांधी परिवार और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ, जबकि इस तरह के संगठनात्मक बदलाव की बात आप लोग करें। कोई भी इंसान और कोई भी जो पार्टी का वर्कर है वो किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। एक वर्कर किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। अगर वो कांग्रेसमैन है तो ये सवाल ही उचित नहीं है। हम किसी के खिलाफ हो ही नहीं सकते। हम तो पार्टी के पक्ष में हैं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। सर मेरा सीधा सवाल है, आपने एक बात कही कि हमें पता है कि हमें नहीं पता कि कौन फैसले ले रहा है और पता है कि कौन फैसले ले रहा है। क्या ये आपका ये इशारा राहुल गांधी की तरफ है? क्योंकि नहीं, कोई मेरे आपको लेके जो भी बैठकें हुई नहीं, देखिए अगर कांग्रेस अध्यक्षा के घर पर नहीं हुई, नंबर 1 और नंबर 2 सर, क्या इस दौरान में जब तक आपने चिट्ठी लिखी है CWC की बात में लास्ट में ये कहा गया था कि एक जल्द समय आएगा, अभी पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके बाद में जैसे ही समय आएगा उसमें कोई आप लोगों के कम्युनिकेशन हुआ है क्या अभी तक या नहीं? देखिए, जहां तक सवाल है, ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो निर्णय गलत लिए जा रहे हैं क्या? इसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं कुछ कहूंगा। गलत हो सही हो, ये चर्चा वर्किंग कमेटी में होनी चाहिए या कहीं और होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल को आपने सुना, शब्दों में नाराजगी उनकी झलकती है आला कमान से। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ही कभी किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में नहीं हो सकता, हम पार्टी के साथ खड़े हैं।